آپ کو لیے چلتے ہیں. وزیر ریلوے شیخ رشید اس وقت لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وہ نوکری سے فارغ ہو جائے گا جی نیکسٹ ڈے. اور ہم نے اللہ کی مدد سے 27 نومبر کے دن 5 کروڑ اور 62 لاکھ روپے کے ٹکٹ کا ریکارڈ قائم کیا جی پیسنجرز میں. 5 کروڑ 62 لاکھ روپے کا ایک دن میں. اور نہیں جی یہ ٹکٹس والے ہیں, یہ ریونیو ایک دن کا جو ہے 5 کروڑ اور 62 لاکھ روپیہ ارن کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام ریزرویشن 7 اسٹیشنوں کی جو ہے ہم نے 2 گھنٹے بڑھا کے اس کو پائلٹ کے طور پر دیکھا. ہماری ارننگ 20% بڑھی. لوگ دیر تک جاگتے ہیں جی اب بڑے شہروں میں. یہ ایک نیا تجربہ ہوا ہے کہ ہم نے 8 سے 9 کی, 9 سے پھر 12 کی. 9 سے 12 میں ہمیں 20% ہماری انکم میں اضافہ ہوا. وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ 7 ڈویژنل شہروں میں راضی صاحب اس کی تیاری آپ ہی کرتے ہیں نا, یہ کر لیں گے, آپ ہی انچارج ہیں نا اس کی. یہ انشاءاللہ کم سے کم وقت میں یہ 7 اسٹیشنوں پہ 24 آور ریزرویشن ہوگی. اللہ کی مدد سے ہم نے بس ٹھیک ہے 20 ارب روپے کی 4 مہینوں میں آمدن کی ہے. اور جو ہمارا ہدف ہے کہ 10 ارب سال میں زیادہ ارن کریں گے, یہ اس کے بالکل قریب ہے. تھوڑے سے ہمارے پرابلم ہیں, وہ آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کر لیں گے. پچھلے 100 دنوں میں 90 دنوں میں 100 میں نہیں, ہمارے 90 ہی ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے لاہور والے میڈیا کو, ہم نے 2 ارب روپے آمدن میں اپنی اضافہ کیا جی. صرف پیسنجر کا اضافہ جو ہے وہ تقریباً 1 ارب روپے ہے, جو ریلوے کے افسروں کی, ریلوے کے عملے کی اور ریلوے کے مزدوروں کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے. 90% ہم نے وقت کی پابندی کو بھی ٹچ کر لیا ہے الحمدللہ. 10 ٹرینیں آپ سے کہا تھا, آخری ٹرین 23 دسمبر کو رحمان بابا کا اجرا ہو جائے گا. 1 ارب روپے کے غیر ضروری اخراجات کو ہم نے کم کیا جی. وزیر اعظم اور چیف جسٹس صاحب کے فنڈ میں ہم نے 5 کروڑ روپے اکٹھے کر لیے ہیں. ڈیم فنڈ میں اس کا جب اضافہ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم خود جا کے ان کو پیش کریں گے. اور اس میں ہم بعض پرائیویٹ لوگوں کے پاس بھی ریلوے کے فنڈ کو قابل احترام بنانے کے لیے ان کے پاس بھی ڈیم کے لیے ہم جائیں گے. یہ وہ ہے جو 1 روپیہ ٹکٹ پر اضافے کے ساتھ ہم نے حاصل کیا اب تک. تھینک یو ویری مچ. کوئی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ پھر سرکاری افسر جو ہیں. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں لوگ واپس چینج نہیں لیتے. 2-3 روپیہ ہو تو چھوڑ دیتے. نہیں مانگتے. اچھا چلے دیکھ لیتے. مجھے آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کے 90 دن میں گزشتہ والی سال کی نسبت 2 ارب روپیہ زائد آمدنی ہوئی, جبکہ ریلوے کے اعداد و شمار کے مطابق 1 جولائی سے 20 نومبر تک 140 روز میں جو ریلوے کی پریویس ایئر سے زائد آمدنی ہے وہ 1 ارب 17 کروڑ ہے. اس کے بارے میں کیا منظور صاحب ہی بتا سکتے ہیں, میں تو اس کا ماہر نہیں ہوں, انہوں نے ہی بنایا اور مجھے پورا یقین ہے کہ اتنا ینگ منظور صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں. اس کے بعد جواب دے دینا اینڈ میں. میں شکر کریں خسارے میں تو نہیں گئی نا پچھلے سال. ویری گڈ کوشچن. آئی مسٹ اپریشیٹ یو. بہت اہم لوگوں کے بچے میں نے بورڈ میں ڈسکس کیا یہ کہ 2 آدمی کراچی ریزرویشن میں بیٹھ. یہ وہ بات ہے جو میں اپنے افسروں سے کر چکا ہوں. اور لمبی لائنیں تھی اور 16 آدمیوں کی ریزرویشن میں بیٹھنے کی جگہ ہے.
सो इसका नोटिस ले लिया हमने. थैंक यू. शेख साहब 10 नई ट्रेनें जो आपने चलाई हैं और उस हवाले से बताइएगा कि जो टिकट्स फरोख्त हुई हैं तकरीबन 20% से भी ज़्यादा मुसाफिर जो उसमें सफ़र नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो खसारे में जा रही है? दूसरा ये बताइएगा कि जो रिपोर्ट शेयर की गई है उसमें ये लिखा गया है कि गवादर से कोयटा जो है 365 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है ML2 के लिए. मुआहिदा जब कि ML1 का हुआ उस पर फोकस छोड़ के ML2 के ऊपर ज़्यादा जो है वो क्यों दिया? तीसरा सर एक छोटी सी और चीज लीजिएगा कि आप हमेशा बात करते हैं स्टैंडर्ड गेज के ऊपर, ब्रॉड गेज सिस्टम यहाँ पे है, तो वो कितने अरब डॉलर मजीद चाहिए होंगे अगर आप स्टैंडर्ड गेज पे कन्वर्ट करते हैं? पहला सवाल ये है कि हमारी ऑक्यूपेंसी अल्हम्दुलिल्लाह मंजोधारो, हमारी ऑक्यूपेंसी लतीफ़ भटाई जो कि मीरपुर ख़ास पे 140 और 141% पे है, जो मेरी तारीख़ी ज़िंदगी में मैं तीसरी दफ़ा आया हूँ, ये कभी नहीं हुई. ये ढाबे जी की बड़ी कम थी, इसे हम ले गए हैं मीरपुर ख़ास तक और ज़बरदस्त इसमें कामयाबी हुई है. कोई ट्रेन भी हमारी ऐसी नहीं, बाज़ का तो ऐसी बातें हैं, मियाँ वाली एक्सप्रेस हफ्ते इतवार के दिन वो 600 की जगह 1100 मुसाफिर बैठ के आ रहे हैं छतों पे भी, और मैं डरा हुआ हूँ कोई खुदा ना खास्ता. सो बल्कि मैंने खुद DSS को कहा कि छत पे कोई ना बैठे वो. सो अभी तीसरी सवाल आपने स्टैंडर्ड का किया है. स्टैंडर्ड गेज बहुत महंगा है, हम ये ML1 पे ही काम कर रहे हैं. इसकी बेसिक स्पीड 160 है जो कि 260 तक जा सकती है, और अगर जेलम गुजर खान का कर्व ख़त्म कर हो गया जो कि ML1 का हिस्सा है तो 1 घंटा पिंडी लाहौर की ट्रैफिक कम हो जाएगी. और हम किसी का रोज़गार नहीं ख़राब कर रहे जी, ये बसों वाले बिल्कुल हम चाहते हैं कि जो मेन रूट्स हैं हम उस पर रहना चाहते हैं. हम ऐसी जगह नहीं जा रहे, हम वो स्टेशन भी ख़त्म कर रहे हैं जहाँ से 10 सवारियाँ ना बैठें. बेशक सारा जी सर आपका हो गया. एग्रीड. कुछ नहीं, अभी वो इन्होंने राजी ने पेश किए हैं, हम जॉइंट वेंचर, और इंशाअल्लाह ताला मंगल के दिन या सोमवार को 11 बजे मेरी मीटिंग है. हम चाहते हैं कि हमारे 2 मुफ्त का माल नहीं है जी कि मुफ्त दे दें. सो हमने ये चाहते हैं कि लाहौर और कराची जो है ना, कोई कॉलेज ऐसा ले ले जो मेडिकल कॉलेज का भी, ताकि हमारी अर्निंग ज़्यादा हो, क्योंकि हम पे ये काफ़ी बड़ा हमारे ख़जाने पे बोझ है. और हमने आपके सवाल बहुत ज़बरदस्त है, इसमें अभी हमें वो कामयाबी नहीं हुई. बाज़ लोग समझते हैं एवं ही दे दो जी, एवं तो नहीं दिया जा सकता. इशफाक खटक साहब काबिल एहतराम हैं, मैंने कभी मुनासिब नहीं समझा. 4-6 साल उन्होंने कश्मीर पे भी ट्रेन चलाई है, 2 साल उन्होंने CPAC भी किया है, और ये सारा क्रेडिट CPAC का मैं खुदा को जान मैंने देनी है, इमरान खान को जाता है. अगर इमरान खान चीन जाके हम उसके साथ ना होते और ML1 पे इतना जोर ना देता तो ये जो 30 बंदे आके बैठे हुए हैं और 25 दिसंबर लास्ट डेट है, ये कभी ना होती, शायद 2 साल और लग जाते जी. आपने कहा कि एक दिन में रेवेन्यू 5 करोड़ 62 लाख रुपया इकट्ठा हुआ, तो मोबाइल घड़ी कौन सा दिन था जी? आपने कहा कि रेवेन्यू एक्चुअली ट्रेन वालों से जो मेरी बात हुई, हमने बड़ा स्ट्रिक्ट फैसला किया है. पहले हम उलझे हुए थे कई कामों में, अब हम फारिग हुए हैं. जो हमारी कमजोरियां हैं उस पर हमारी नजर है, उसको ठीक करेंगे. लास्ट क्वेश्चन. ईरान ज़ियारतों से आने वाले ज़ायरीन जो है 6 दिन तक कोयटा में फंसे रहे. करबला से वो ज़ायरीन आए और लाहौर रेलवे स्टेशन पर खालिद रफीक को बदवाएं देते रहे ज़ायरीन कि उसने इसने 5 साल के दौरान कोई ट्रेन वहाँ पर मजीद नहीं चलाई. क्या इन ज़ायरीन के लिए भी आप कुछ नई ट्रेनें चलाएंगे? देखें, कल कोरियन आ रहे हैं, सोमवार को रशियन आ रहे हैं. ये सारी बातें मैं प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में ला चुका हूँ. तफ्तान से कोयटा जो है 670 71-72 किलोमीटर का एक फासला है. वो बड़ी नाकस ट्रेन है, वहाँ पे पटरी जो है तो ब्रॉड गेज है, बड़ी ख़राब हालत है. ये 2 चीज़ें जो मेरी बेटी ने सवाल किया था स्टैंडर्ड गेज का, कोयटा टू तफ्तान एंड कोयटा टू ग्वादर, दे विल बी स्टैंडर्ड गेज. क्योंकि अगर उनके साथ चीन के साथ उनकी स्टैंडर्ड गेज है, उनकी सारा स्टॉक जो है रोलिंग स्टॉक जो है स्टैंडर्ड गेज है, तो ईरान और चीन के रोलिंग स्टॉक से उनके साथ इश्तराक के लिए फ्राम कोयटा टू ग्वादर एंड फ्राम कोयटा टू तफ्तान ये स्टैंडर्ड गेज पे जाएंगे. और आप यकीन रखें, मैं फारग नहीं बैठा हुआ, मैं तमाम मुतलका लोगों से जब टाइम मिलता है
मेरी ख्वाहिश है कि ML1, 2, 3 एक ही वक्त में, और मैं चाहता हूं कि मरने से पहले ML1 का मैं क्रेडिट लेके जाऊं अगर अल्लाह को मंजूर हो। लास्ट अच्छा, जो भी बगैर टिकट के बस यार बस कर दो। रेलवे बहुत बड़ा महकमा है, हमें अभी छोटी छोटी बातों में नहीं जाना मेरे भाई, हमने बहुत बड़े फैसले करने हैं। हमें फसाद ये चाहते हैं आप, ये मुलाजम है या नहीं है। लेट्स गो इन ए वेरी हाई मोटिव एंड हाई टारगेट। अल्हम्दुलिल्लाह। ओ यार, लास्ट क्वेश्चन। PSDP में काफी आ गया था आपकी गवर्नमेंट की तरफ से दे रहा है, क्या गवादर के काम जो आप करना चाह रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट से मजीद फंड लेने की कोशिश करेंगे? नाज़रीन, परसों हारून सिंह ने आपके बारे में बड़ा संस्कार भेजा, मेहरबानी है उनकी, आपके सियासी इमदाद के बारे में, कैबिनेट के बारे में और कॉस्मेटिक कामों के बारे में जरा उसकी तरफ तफसील। मैं माफी चाहता हूँ, इतने बड़े इंसान का मैं पढ़ नहीं सकता। करतारपुर का सारा क्रेडिट जो है लॉस सप्लाई बाजवा के एक जफे ने हिंदुस्तान की सारी फॉरेन ऑफिस को नेस्तो नाबूद कर दिया। एक जफा बाजवा साहब का, उसने सारी दुनिया में वो पैगाम पहुंचाया है जिसे इमरान खान ने अमली शक्ल दी है कि इंडिया में सफ़े मातम बिछी हुई है कि हमारा जो मिशन था उसको बाजवा साहब के एक जफे ने नेस्तो नाबूद कर दिया। लाहौर में वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को मजीद 2 ट्रेनें चलाई जाएंगी, साल में 10 अरब आमदन में इजाफा करेंगे, बगैर टिकट सफर करने वालों की मदद करने वाले नौकरी से फायदे होंगे। डैम फंड के लिए 5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए अब तक। अमेरिका में तुम उनका चिल्लाना ही मिस करोगी। हमेशा क्यों चिल्लाते रहते हैं? आज मेरी गुड़िया की शादी है, कोई कमी न रह जाए। देखो फ्यूज हुआ है। बाबा, तुम खाने से पहले कुछ मीठा हो जाए। आंखें खुलती हैं तो दिल भी खुलता है। इस बात पे मीठा तो बनता है। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ मीठा हो जाए। अगर आप भी बैतुल्लाह की ज़ियारत के मुंतज़िर हैं तो आज ही खरीद लाएं वाइटल चाय का छोटा या बड़ा इकोनॉमी पैक, और पैक में मौजूद कार्ड पर दी गई हिदायत पर अमल करें और शामिल हो जाएं उन 100 खुशनसीब अफराद में जिनको नसीब होगी उम्रे की सादत, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो फिर आज ही उम्रे की तैयारी शुरू करो। वाइटल पियो, जिंदगी जी।